Assalamu alaikum, Maha. Thank you so much for joining the session. Walaikum assalam. Thank you for inviting me, and I hope Uh, you're doing well. I'm doing good. I'm doing good. Thank you for asking. So, you know, the main reason of having these session is to get as much industry professionals ताकि हम ये देख सकें कि इंडस्ट्री प्रोफेशनल पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर क्या चीज़ें किस तरीके से देख रहे हैं। सो द न्यू कमर जो कब ग्रेजुएट होंगे स्टूडेंट्स उनको पता हो कि यार दीज आर द थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट सो बिफोर आई स्टार्ट द सेशन बिफोर वी जंप इनटू द कॉन्वर्सेशन I want you to introduce yourself. I'm pretty much sure a lot of people know you on LinkedIn. Just for the audience, अगर अपने बारे में बता दो what you're doing, how's everything going. So we'll start the conversation. Okay, sure. I'm just going to give a brief introduction because I think that's really important. So basically, I am a communication professional, and that's how I like to introduce myself passionately and professionally. So I've been working with communications for the past 5 years now. I started off my journey as a public speaker, and then entered into the world of content. And I've over 8 years of experience working with all sort of content development. So I started doing freelancing when it was not even the freelancing that it is now. So that's how I been into, all aspects of communication, whether it was speaking, writing, and then I got into training, which was a very deliberate decision of mine to pick my own path, as I was work doing a science degree, but I was really interested in working as a trainer. So I did a lot of self learning apart from the science degree that I had. And then I worked as an assistant trainer, then a trainer, then I worked with different organizations. I worked as a consultant, and it's been going good. Alhamdulillah. Now I have trained over 1,000 individuals all over the world about public speaking, about professional communication, coached them for interviews, presentations, and yes, now I'm based in Sweden. Perfect. So you have done a lot of thing in Pakistan, train a lot of student, now you're a student. So we will be discussing the student part afterwards. But I think the main important factor that need to be discussed right now is the communication. Okay, you being as a trainer, you know कि how much communication, how much PR is important for everyone. Okay, nowadays what we are seeing that people do face a lot of problems when they don't have any specific PR or they don't know anyone in the in the industry. Okay, so starting off with the university part. So yeah, so I wanted to know okay, when you graduated and when you wanted to start something, okay, what are the problems that you have faced? Because a lot of people don't have that communication skills या उनके पास इतना वो नहीं होता कि यार वो लोगों को जानते हो या लोगों से मिलना चाहें या वो इतना पैशनेट नहीं होते, ठीक है? बिकॉज़ दे आर लाइक बोथ द साइड्स आर इक्वल। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ़ यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन पे ध्यान देते हैं और जब वो ग्रेजुएट होते हैं तो उनको पता चलता है कि यार like from where to start, like do they start with internship, do they start with like क्योंकि उनके पास कोई मेंटोर नहीं होता, ठीक है? सो फर्स्टली मुझे ये बताओ कि थ्रू आउट योर एक्सपीरियंस व्हाट आर द की प्रॉब्लम्स दैट यू हैव फेस और दैट यू आर सीइंग कि यार लोगों को इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहिए व्हाइल आफ्टर ग्रेजुएटिंग और बिफोर ग्रेजुएटिंग सो देयर लाइफ विल बी मच ईजियर, ठीक है? मे बी इट्स कम्युनिकेशन बिकॉज़ हमारे यहाँ अभी भी कम्युनिकेशन को मर्ज कर दिया जाता है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप कम्युनिकेशन अच्छी कर सकते हो। बट व्हाट आई पर्सनली बिलीव कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली डिपेंड ऑन लैंग्वेज, ठीक है? इट्स डिपेंड अपॉन कि यार आप किन लोगों को जानते हैं, किस तरीके से उनसे बात करते हैं, इंडस्ट्री में लोग आपको कैसे जानते हैं एंड वाइस वर्सा। सो व्हाट आर द की इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट यू सी कि यार पीपल नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन बिफोर देयर ग्रेजुएशन और आफ्टर देयर ग्रेजुएशन that can help them in their overall growth? Okay, that's a really interesting question because I have mostly worked with this age group, jo ke, whether they are fresh graduates or they're doing during their university life. I'm from University of Karachi, and I had the opportunity to work as a trainer and as a visiting faculty at the University of Karachi as well. So I have a lot of experience working with this particular age group, and I would say the mistakes I made sure my students don't make. The first thing was I always tell my juniors, my clients, or my students that's really important to have co curricular experience and develop your skills apart from your academics.
which is really important. And at times it's really difficult. So I have a complete pre-med in science background. I'm from Aga Khan Higher Secondary School, and my education was, during those days, it's really difficult. Being a science student, you have to take out time and give it to any other skill. But I was glad that my institution had opportunities, and I tried making use of them. So it started off from college only, that I was taking part in opportunities, going, getting rejected, going again, getting rejected, stumbling on the stage. But because it's important to fail in order to grow, so I kind of I was lucky enough to find good teachers as well. Of course, I will want to give them the credit. But yeah, along academics, there was a huge part of me that was developing in terms of skills throughout my educational journey, which is really, really, really important. Then I went to the university. Yes. Then you were saying something. When I have Yeah, connecting, I'll ask. yeah, you can ask later. So then I entered university, and again, I belong to the University of Karachi, and that also deserves a lot of fair in terms of co-curricular activities, because you can find the most, impactful debaters around the campus, and we have a lot of opportunities to grow yourself if you want to do it, and if you want to invest, and if you want to take out time and work on your skills, so you can. I won't say I was extremely devoted during my first few years. I would be honest. It was difficult around, managing your studies and academics, and also giving time to co-curriculars. But later on, when I got into it, and especially during my final years, I was lucky enough to have opportunities, speak at a lot of platforms, win competitions, and get the exposure that is helping me immensely now. Impressive, impressive. My next pointer, the next question that I wanted to discuss is, what I see is a lot of people usually think whatever you study, you're going to be in that field only. Okay. What I see, you graduate in Bachelor of Science. Okay. And it's not like that कि you only work in that specific field. Okay. I can see you work in learning a facilitator, you work in SEO, then sales, then communication. Now back to the like you were like आपने अलग-अलग स्टेप्स पे अलग-अलग चीज़ें करके देखी जस्ट टू नो कि यार व्हाट्स परफेक्ट फॉर मी एंड आफ्टर अ व्हाइल गोइंग थ्रू द थिंग्स एंड यू गॉट एन आइडिया कि यार नाउ कम्युनिकेशन इज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू. A lot of people usually hesitate to do that. A lot of स्टूडेंट यूजुअली थिंक कि यार अगर उन्होंने किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर ग्रेजुएशन करनी है तो वो उसी चीज़ के अंदर काम कर सकते हैं. ठीक है? एंड दे यूजुअली डोंट एक्सप्लोर अपॉर्च्युनिटीज़. समटाइम्स वी थिंक दैट अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, तो यूजुअली पीपल डोंट हैव अ बैकअप प्लान. दे थिंक कि ईदर वी नीड टू डू दिस और देयर इज़ नथिंग. ठीक है? मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या उसके स्टूडेंट में तो फिर भी थोड़ा-सा डिफरेंट माइंडसेट होता है. बट व्हेन इट कम्स टू कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, तो मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि वो कोई स्पेसिफिक चीज़ सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी जो जो उनकी क्या कहते हैं, इनका रिज़ल्ट होता है उसमें वही फ़ील्ड उनको अवेलेबल मिलती है और फिर वो उसी के अंदर परस्यू कर लेता है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक स्विचिंग टू जॉब्स, व्हाई डिड यू डू दैट? ठीक है, एंड डू यू थिंक दिस इज़ अ राइट थिंग? क्या आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप उसमें स्टे करो, यू कैन ट्राई समथिंग एल्स? Okay, so I would like to add something over here. You mentioned about universities. So, the first thing is, in terms of students in Karachi or in Pakistan, there is a clear division about the private and government sectors. If a student is going to government sector, that really means that they need to earn and support their family. So there's a big, big part of the city which is working and earning and getting a degree because they need to support their families. So a lot of times you don't have the privilege to explore your skills, which is something that we all should acknowledge. And I think I saw that when I was over there as well, because coming from a different college, and then studying at a public university gave me a lot of insights about how the students in the city were struggling and working and supporting themselves and then developing their skills. So I would say that it cannot be subjectified for everybody, because everyone has very individual experiences and responsibilities. And yeah, but at the same time, because you're doing multiple things, so you develop a lot of strength,
to overcome challenges. And then when you get out of the university, you are way more resilient to enter the professional life and to explore yourselves. And obviously, whatever fields that you're working on. If it's about the career path, then I'm going to be very honest. From the very beginning, I had the goal of going into communication, teaching, or training. And my entire journey was around, after even getting the degree, I worked the as a visiting faculty at KU, and before that, I also taught at multiple places because I always wanted to be in the role of a communicator, whether it was science, whether it was communication, but that was something that I was doing since the beginning. So I wouldn't say that I experimented in terms of my domain, because you can see that whether I was in sales or in training or in teaching, it's more or less the same thing. You are utilizing your voice and building an impact, and doing something, finishing up a target, whether it is selling something, teaching a skill, or imparting knowledge. So more or less that went all around the same domain. But yes, it gave me a lot of experience, vast experience in terms of the specific domains. So therefore, when I train today, I know about sales, I know about how to build a business, how to uh, sell something, how to impart knowledge, how to train people, how to speak in an interview. So वो तमाम जो specific experience थे उस domain से related जो circulate कर रहे थे, they all just summed up and brought me here today. So I would say it was like chunk of it. So it's really important to have clarity. I will not recommend that you should just go here and there. It's important to have clarity, but also remember, if you're switching paths, it's going to require 2x hard work. I was doing a degree on the side. I was doing so many certifications. I did teaching as a English as a foreign language, public speaking, NLP, and all of these things. So I was working and studying and studying double, just because I wanted to do it, and I wasn't, at that time it wasn't allowed to me that I should go and pursue a communication degree. So I said, okay, I'll do it on my own. So I did a science degree, I did all these communication certifications, and it was twice the hard work. So it's important to have clarity and develop your path around it. But if you want to experiment, try to still remain relevant. Agree on the point. My main point was that क्योंकि a lot of people usually think कि जैसे आपने somewhat you work in different things, but उसका जो main bigger umbrella थी, उसका main purpose same था, ठीक है? और उसमें ये होता है कि sometimes like you started off with content writing, that's also for public, ठीक है? Then you come in, then you after several years you end up with communication spaces, that's also for service Yeah. for people, ठीक है? Now, let's jump a little bit after graduation and discuss about the key problems that I think students might have. Yeah. Number one, they usually don't have mentors. So they are blank what to do. ठीक है? अ, कुछ लोग आप जैसे होते हैं, उनके पास लर्निंग एंड वो चाहते हैं कि वो चीज़ें सीखें एंड इट्स लाइक इट्स बोथ द वेज़। ऐसा नहीं है कि हर बंदे के पास 24 घंटे ही हैं, तो हर बंदे ने उसी 24 घंटे को मैनेज करना है। You are managing your degree with those courses and everything because you wanted to do something, ठीक है? But there are people who are graduated with normal, they are not doing anything. What do you think are the right steps to do after graduation? ठीक है? Because what I see, there are a lot of first कि यार आपकी सीवी ऐसी होनी चाहिए, आपका ये ऐसा होना चाहिए, आपका लिंक्डइन ऐसा होना चाहिए, ठीक है? आफ्टर स्पेंडिंग लाइक 6-7 इयर्स इन द इंडस्ट्री, अब आपको पता चल जाता है कि ठीक है यार, व्हाट इज़ द राइट राइट पाथवे, ठीक है? क्योंकि आपको थोड़े टाइम बाद पता चल जाता है कि भाई सीवी अपनी जगह ठीक है, लेकिन पीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लोग जानने चाहिए, ठीक है? आपने इंटर्नशिप करी है वहाँ, ठीक है? देयर आर पीपल हू जस्ट डूइंग 4.0 सीजीपीए ग्रेजुएटेड एंड देन दे वर लाइक कि यार हमें तो जॉब ही नहीं मिल रही, ठीक है? एंड देयर आर पीपल हू आर लाइक 2.8 जीपीए और उनको वो आराम से 2-3 साल पहले से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को पहले से इतना चेक कर लेते हैं या वो इंडस्ट्री के अंदर पहले से इन हो जाते हैं। एज़ फार कि आप बेसिकली आप जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो जनरेशन यूथ के अंदर ही है, ठीक है? सो क्या आप देख रहे हो कि यार ये की प्रॉब्लम्स हैं, इनको लोगों को सही कर लेने चाहिए ताकि वो पाथवे ठीक बन जाए?
ठीक है? अब वो तो ठीक है कि आप स्टार्ट कहीं और से कर सकते हो आहिस्ता-आहिस्ता, लेकिन स्टार्ट करना कैसे? क्योंकि लोगों का ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि थीसिस दे दिया है, तो अब मैंने बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ लिया है, अब मैं 3-4 महीने का रेस्ट लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। ठीक है? जैसे आपने अभी कहा कि हर स्टूडेंट की लाइफ़ थोड़ी अलग होती है, सही है? कुछ लोग होते हैं जिनके पास ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनको वो चीज़ें करनी होती हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको करना वो सब कुछ ही है। मतलब अगर आपके पास ज़िम्मेदारी है तो आप अपनी सीवी पे ये तो नहीं लिख सकते यार मेरे पास ज़िम्मेदारियाँ आप मुझे नौकरी दे दें, ठीक है? सो यू नीड टू कम अप विद अ प्लान। जितना पहले प्लान बनाएँगे, वो प्लान होना क्या चाहिए आपके हिसाब से कि यार ग्रेजुएशन होने वाली है आपकी तो ये आपका प्लान सेट होना चाहिए। ये चीज़ें तो आपके चेक पॉइंट या चेकलिस्ट क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इन माय ओपिनियन ग्रेजुएशन जो है वो यानी वो थ्रेशोल्ड नहीं होना चाहिए, वो मार्क नहीं होना चाहिए कि उसके बाद ही आपका प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होगी। दैट्स नॉट द पॉइंट। यू शुड ऑलवेज स्टार्ट वर्किंग एंड मोस्ट प्रोबेबली इफ यू हैव टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज, get into your professional life while you're studying. I have graduated and, I think my entire friend group, we were working in 3rd year and in 4th year. Both years हम लोग साथ-साथ काम कर रहे थे और पढ़ रहे थे और जब ग्रेजुएशन हो गई तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं हुई बिकॉज़ इट्स नॉट लाइक कि आप एक ब्लैंक खड़े हुए हैं बिकॉज़ यू ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड एंड यू वर ऑलरेडी वर्किंग इन सम कैपेसिटी तो आप एक बेहतर पोज़ीशन पे होते हैं टू make that transition into the professional life because most of the time what happens is that when you are not uh, exploring enough opportunities or not taking risks or not doing internships or not doing any jobs that are available at that time or freelancing तो वो जो गैप होता है वो बढ़ता जाता है फिर आप प्रेशर बहुत होता है आफ्टर ग्रेजुएशन के एंटर होते ही हमें जॉब मिल जाएगी वो तमाम प्रेशर एंड देन ऑब्वियसली सोसाइटी एंड फैमिली एंड देन क्वेश्चंस तो इट्स डिफिकल्ट टू नेविगेट द जर्नी so always be prepared beforehand and have your resources. Reach out to people. You guys are living in today's world. इतना तो networking 2022 में भी नहीं थी जब 2021 में जब मैं graduate हुई अब तो चीजें और बेहतर हो गई हैं. I mean things are at your fingertips. Reach out to you. You are so many people like you are on the social media. You can reach out. You can ask for help. Ask for suggestions. Go see what they are doing. What they have in their profile. What certifications you can do what internships are available right now सेल्फ लर्निंग करें उस चीज़ को इतना डेवलप करें कि व्हेन यू फिनिश योर डिग्री यू कैन ट्रांजिशन स्मूथली और एट लीस्ट इन अ बेटर वे दैट्स व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट माय स्टूडेंट्स एज वेल कि थर्ड ईयर में पहुंच गए हैं अगर आप साइंस नो मैटर विच एवर फील्ड यू बिलोंग टू इंटर्नशिप्स करें एक्सपोजर लें कोशिश करें कि आप पहले से प्री प्रिपेयर्ड हो कि आप वो ट्रांजिशन करें और इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा जो हेल्प किया मुझे या मेरे स्टूडेंट्स या मेरी फ्रेंड्स को वो हमारा एक्सपोज़र था विद को-करिकुलर. I was also very active in my department in organizing conferences, being with people around and taking the initiative to do this, to do that. जब आप network कर रहे होते हैं, जब आप already you know the how the process works and how where people are working and what they are doing, so it's easier for you to go and reach them out or maybe explore opportunities, see what's going on, so you can apply for jobs और मे बी जस्ट आस्क फॉर हेल्प। इस तरीके से आपको पूरा नेटवर्क भी डेवलप हो जाता है, आपकी स्किल सेट डेवलप होता है, आपको पता होता है कि हू आर द राइट पीपल टू रीच आउट। सो वो जो नेटवर्किंग या फिर आई वुड से सेल्फ लर्निंग का प्रोसेस है, वो इस पूरे सिनेरियो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अब तो आजकल के सिनेरियो में और ज़्यादा है बिकॉज़ एवरी सिंगल डे थिंग्स आर गेटिंग मोर कम्पेटिटिव। Every day you see AI is replacing you kind of slogans where you were like, okay, what am I going to do with my degree? So you have to be more relevant. You have to focus more on your soft skills at this point. I mean, I cannot emphasize enough how important it is to know how to communicate to people, to have clarity about your thought trail of thoughts, to speak impactfully, to network, to connect, to pitch yourself. I mean, all of these things are the key features which cannot be replaced by any technology. So you should at least know that before you graduate or before you enter your professional life. एंड दैट्स आई थिंक दैट्स ईज़ीएस्ट नाउ। अब आप किसी भी डिग्री में जो है वो एनरोल हुए हुए हैं, देखें दुनिया में क्या चल रहा है, उससे रेलेवेंस क्या है, क्या फ्री कोर्सेज़ आप कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करें। डोंट वेट फॉर द डिग्री टू एंड टू गेट अ कोर्स और गेट अ सर्टिफिकेशन और गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। वो पहले से ही आपकी प्रोफाइल इतनी बिल्ड होनी चाहिए कि आपको आइडिया हो कि वेयर एम आई सपोज्ड टू गो नाउ।
I should have clarity before I graduate. So don't wait for the entire degree to finish to enter this hustle, because it's very competitive now. You should Agree. have something more to add on if you want to get a job, or if you want to work as a freelancer or whatever it is. Even I want to talk about freelancing. When I started content writing, I think it was not उतनी सैचुरेटेड नहीं थी इंडस्ट्री। मुझे याद है उतनी अपॉर्च्युनिटीज़ भी नहीं होती थी। इट वाज़ जस्ट द बिगिनिंग आई थिंक, और मेबी इन पाकिस्तान इट वाज़ नॉट एज़ फेमस, एंड देन कोविड केम बिकॉज़ आई ग्रेजुएटेड व्हेन इट वाज़ कोरोना 2021. So at that time, everybody has started to explore, okay, what is this? What is going on the internet? How are we making money on the internet? And then they started working, and then freelancing started growing. And we all, I mean, so many of my friends I have known, we have worked together on projects, and that was really productive and fruitful. वो उसने बड़ा experience दिया हमें, हमने explore किया वो. I would say I started off my journey just as a content writer, and that has given me the entire foundation of my career. So, see, so many opportunities are available for you, but again, you have to go an extra mile to, and work harder. अगर आप plain traditional or mainstream pathway follow करेंगे, so I'm sorry, it's gonna take a while. Agree. You highlighted some key pointers जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन प्रेजेंस या चीज़ों को सीरियसली देखने का जो चक्कर है वो 2019 के बाद ज़्यादा हो गया, क्योंकि बिफोर दैट एवरीथिंग वाज स्मूथ इनफ। लोगों को पता था कि ठीक है, ज़िंदगी ऐसी ही चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। बट 2019 जब कोरोना आया, देन पीपल स्टार्ट टू नो कि यार ओके फाइन, इंटरनेट पे हम बहुत सारी चीज़ें करके सीख सकते हैं। यू वर सेइंग एट द राइट टाइम, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं कि हर बंदे के पास कोरोना वाला फ़ेज़ आए, ठीक है? लेकिन जैसे आपने कंटेंट राइटिंग जब स्टार्ट करी तब वो नई थी, तो आपके पास एक टाइम फ्रेम होता है कि ठीक है, जब मैं सेल्फ लर्न करूँगी, जिस टाइम पे मैं प्रोफेशन हो जाऊँगी, तब तक ये फील्ड भी ग्रो कर लेगी, ठीक है? सो नाउ व्हाट आई सी इज़ आई एम सीइंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ जस्ट, हम तो लहर के साथ चलते हैं ना पाकिस्तान में। तो ये बीबीए की लहर आई 2015-16 में, पूरे पाकिस्तान के बच्चों ने बीबीए कर लिया। हमको लगा कि भाई बीबीए जो है वो इट्स द नेक्स्ट बिग थिंग, ठीक है? 2019, 2020 के अंदर कोरोना आया, सबने अपनी एजेंसियाँ खोल ली पूरे पाकिस्तान में। हर गली के अंदर एक नई एजेंसी खुल गई, हर बंदा जो है वो सोशल मीडिया पे आने लग गया। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस टाइम पे क्या चीज़ स्टार्ट कर रहे हो। जैसे आपने बोला कि वो टाइम तो लेता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ कहाँ पे चाहिए और उसके लिए कितना पहले बफर पीरियड रख के आपको काम स्टार्ट करना है। सो मेरा मेरा मेन कंसर्न ये होता है कि अगर आप ग्रेजुएट होने के बाद मेहनत कर रहे हैं, तो हाँ, आपको 5 साल लगेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर से ही मेहनत करे, तो वो ठीक है, वो 5 साल काउंट नहीं होंगे, वो 1 साल काउंट होगा, 2 साल काउंट होगा, लेकिन वो फिर भी आपसे रेस में थोड़ा आगे होगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। दूसरी चीज़ ये भी आ जाती है कि लोग यूजुअली वो चीज़ करते हैं जो कि बहुत मेनस्ट्रीम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोगों को आज से 5 साल पहले ऐसा लगता था कि एआई इज़ ओनली फॉर इमेज जनरेशन, ठीक है? आफ्टर 5 इयर्स आज लोगों को लगता है कि हर चीज़ एआई से हो सकती है। अब पाकिस्तान में हमेशा ये रहा है कि पाकिस्तान में हमने ट्रेंड फ़ॉलो करा जब दुनिया ट्रेंड से पीछे हट जाती है। सो वी हैव एनएफटीज़, एनएफटीज़ खत्म हुई तो हम एनएफटीज़ में गए। फिर क्रिप्टो आया, क्रिप्टो खत्म हुआ, हम क्रिप्टो में गए, ठीक है? आई एम प्रीटी मच श्योर एआई आ तो गया, लेकिन एआई इन पाकिस्तान इज़ लाइक इमेज जनरेशन ही करा लो मैक्सिमम, ठीक है? और अगर कोई कंपनीज़ अच्छा काम कर भी रही होंगी, आई एम प्रीटी मच श्योर उसमें कोई पाकिस्तान का प्रोडक्ट तो वो नहीं बना रहे होंगे, किसी बाहर के प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग एज़ सच थिंग, सपोर्टिंग एज़ मच, ठीक है? और इफ दे आर, ठीक है, वो नंबर बहुत कम होगा। मैं ये नहीं कहता, ठीक है, अभी कमेंट्स के अंदर बहुत सारे लोग आके बोलेंगे नहीं गवर्नमेंट इज़ डूइंग दिस। ओके, अगर गवर्नमेंट कर भी रही है, तो आपको ये चीज़ देखना चाहिए उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। तो दिस इज़ गुड। और जहाँ तक आपने बात करी कि हाँ, कम्युनिकेशन, पीआर ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, और उसमें ऐसा लगता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हिच प्लेटफ़ॉर्म टू फोकस ऑन, ठीक है? व्हाट आई सी इन 2025, जेन ज़ीज़ आर मोर टुवर्ड्स स्नैपचैट, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर रॉन्ग, दे आर राइट। वो भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन पे भी रहना चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको अपनी फ़ील्ड के अंदर करना क्या है, ठीक है? आई एम प्रीटी मच श्योर Maha, you also on other platforms, but Maha on other platforms is totally different while I see Maha on LinkedIn, ठीक है? So you need to understand कि आपको अपना ग्रोथ चार्ट बनाना है। कहते हैं LinkedIn is important nowadays, ठीक है? What I see when I communicate with other people in Pakistan, आज से 1-2 साल पहले लोगों को ऐसा लगता था LinkedIn is only अगर आपको बाहर नौकरी चाहिए हो, क्योंकि सिर्फ़ बाहर का एचआर LinkedIn पर होता है।
इन कोरोना व्हाट वी सी इज़ दुनिया का सारा बंदा अब लिंक्डइन पर आने लगा क्योंकि उनको पता चल गया कि अब हम तो रीच आउट नहीं कर पा रहे किसी को जाके, बाहर तो जा नहीं सकते। तो किसी तरीके से वर्चुअली तो रीच आउट करें। एंड आई थिंक लिंक्डइन इज़ ओनली द प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे आप रिसोर्स को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, रिसोर्स आपको रीच आउट कर सकती है, ठीक है? अगर मैं अपनी फ़ील्ड की बात करूँ, प्रोडक्शन हाउसेज़, क्रिएटिव प्रोफेशनल्स यूजुअली डोंट हैव लिंक्डइन, ठीक है? वो अपना काम इंस्टाग्राम पे अपलोड करते थे, फेसबुक पे अपलोड करते थे। I had a conversation with a good friend of mine. His gupshup session is also going to be recorded in few days. ठीक है, तो ही इज ऑल्सो सेइंग दैट पहले हम लोगों के लिए काम डालते थे, ठीक है, बट द पॉइंट इज आपको ये पता होना चाहिए कि राइट ऑडियंस है क्या। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे नौकरी चाहिए, मैं जॉब ओपनिंग की पोस्ट फेसबुक पे डालूंगा तो आई एम प्रीटी मच श्योर कोई भी एचआर फेसबुक खोल के नहीं देखेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स द राइट प्लेटफॉर्म। थोड़ा मुझे ये बताइएगा कि लाइक with your overall approach कि आपने कम्युनिकेशन ही करनी थी और लिंक्डइन, हाउ लिंक्डइन हेल्प यू? डू यू थिंक लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे पाकिस्तानी इसका सही यूज कर रहे हैं? व्हाट आर द राइट यूज केसेस? बिकॉज आई नो दैट आई एम यूजिंग लिंक्डइन फॉर लास्ट 5 years। सही है। सो इफ समवन आस्क टू मी कि यार हाउ 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 मच लिंक्डइन इज इंपॉर्टेंट, तो मैं कहता हूँ भाई लिंक्डइन से मैंने बहुत सारे क्लाइंट लॉक करे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड लिंक्डइन इज नॉट स्नैपचैट, लिंक्डइन इज नॉट इंस्टाग्राम कि आज आपने एक रील बनाई कल आप फेमस हो जाएंगे। यू नीड टू ग्रो समथिंग। आपको पता होना चाहिए आपको कंटेंट किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, किस तरीके के लोगों से कनेक्ट करना है। सो एनी आइडिया, एनी सजेशंस ऑन लिंक्डइन कि यार लिंक्डइन कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों होना चाहिए? व्हाट आर द की इंपॉर्टेंस फैक्टर्स इन लिंक्डइन इफ यू आर कंप्लीटिंग योर प्रोफाइल? LinkedIn, my journey with LinkedIn has been really interesting. I think so. I joined during COVID, uh, during the days of COVID. उस time पे Almost almost 90% of Pakistani join. I had been a friend of mine coming selling LinkedIn पे profile बनाओ आगे जाके यही क्या है. He's now in Saudi doing a great job and I'm like okay I'm just gonna do it. कि उन्होंने पहले बना ली थी तो सऊदी चले गए ना अगर नहीं नहीं वो भी अभी सो द थिंग इज़ दैट कि उस टाइम पे जब लिंक्डइन मैंने आई हैव बिल्ड माय लिंक्डइन फ्रॉम स्क्रैच सो आई हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लिंक्डइन और मैंने लिंक्डइन पे भी वर्कशॉप्स दी थी मुझे याद है यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे स्टूडेंट्स को लिंक्डइन ओवर द इयर्स बहुत चेंज हुआ है आई वाज डिस्कसिंग विद अ सिस्टर ऑफ माइन फ्यू डेज बैक के लिंक्डइन कितना चेंज हो गया ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स बिकॉज लिंक्डइन यूज्ड टू बी वे मोर प्रोडक्टिव एंड बहुत ईजी होता था वहाँ पे ऑर्गेनिक रीच हासिल करना अगर आप कंसिस्टेंट पोस्टिंग कर रहे हैं, अगर आप लोगों से सही तरह से कनेक्ट कर रहे हैं प्रोफेशनली एंड आई हैव वर्क्ड अ लॉट ऑन लिंक्डइन आई थिंक आफ्टर फेसबुक द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया दैट हैज़ बीन इन माय बिजनेस इट्स लिंक्डइन। बहुत सारे लोगों से मैंने कनेक्ट किया है और अभी भी यहाँ पर रिलोकेट होके तो मुझे बहुत ही काम आ रहा है यहाँ पे स्वीडन में भी। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई टेल माय स्टूडेंट्स मैं अपने घर वालों के बहनों के पीछे पड़ के उनके लिंक्डइन बनवाए मैंने कि भाई बनाओ ये करो सेट किया मैंने बहुत प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड की and it has been really helpful as well. So you should have LinkedIn presence during your university years only. Again, don't wait to graduate. During that time, third year में ही अपनी प्रोफाइल बनाए, लोगों से कनेक्ट करें, अपॉर्चुनिटीज देखें, इंटर्नशिप्स इतनी आ रही होती हैं, लोग फ्रीलांसर्स को हायर कर रहे होते हैं और एंड आई रियली रियली लाइक द थिंग अबाउट डिजिटल बिजनेसेस इज दैट दे डोंट वांट यू विद अ डिग्री। तो आप अगर काम कर अभी आप during your studies they will hire you, give you projects of different type, whether it is for writing or whether it is, working, uh, you know, uh, in social media or something like तो आपका एक्सपोज़र बहुत बढ़ता है। प्लस आपको पता चलता है कि क्या काम चल रहा है। आप अपने फ़ील्ड के लोगों से कनेक्ट करें। विज़िबिलिटी आपकी बढ़ती है बहुत ज़्यादा। सो फॉर श्योर लिंक्डइन इज़ रियली इम्पोर्टेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बट आई वुड से दैट आई गेस 1 या 2 साल हो गए आई हैव स्टॉप्ड ऑब्सेसिंग ओवर लिंक्डइन नाउ बिकॉज़ उसकी रीच बहुत मुतासिर हुई है। नाउ मोस्ट ऑफ योर रीच हैज़ मूव्ड टुवर्ड्स प्रीमियम प्रोफाइल्स। सो इफ यू हैव प्रीमियम, यू हैव ऑल द राइट रीच वरना शुरू में इट वाज़ वे ईज़ियर टू कनेक्ट। इफ आई टॉक आस्क यू अबाउट 2 years back. So, now it's not as easy to connect and to be very honest with the if without a premium account. But yes, because मेरा अकाउंट बहुत पुराना है, मैंने बहुत लोगों से कनेक्ट किया हुआ है, तो मुझे अभी भी it's really really helpful for me as well to connect. So again, make your LinkedIn profile connect to relevant people. जिन लोगों को relocate करना है, उनके लिए भी बेतहाशा हेल्पफुल है कि वो जो है वो relocate करने से पहले अपने जगह के लोगों से कनेक्ट करें
और इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। इंटरनेशनली तो ये एक बेसिक अप्रोच है, यानी दिस इज़ द वे यू हैव टू डू इट। पाकिस्तान में अब काफ़ी टाइम बाद ये चीज़ आई थी मैंने, लेकिन ड्यूरिंग माय सेशंस, ड्यूरिंग माय क्लासेस, मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रही होती थी, देयर वाज़ at the end, I always used to tell my students, build your profile, make your CV, do like apply there. So I think as mentors and teachers, as seniors, we have a responsibility to tell the people to do things right. Because you just said something and it reminded me of that पाकिस्तान में एक वेव आती है चीजें करने की, और वो बात सच है। मैं भी उस वेव का शायद आई गेस कुछ आई वुड से आई वाज वन ऑफ द सफरर्स, बट द थिंग इज बिकॉज वी really have less awareness. I think over the years it has increased much, but again there was minimal awareness about the right kind of things. आपकी जो choices होती थी courses की, वो बड़ा एक typical mainstream reasons पे होती थी या societal pressures पर होती थी, और unfortunately बच्चे उस चीज़ में they used to suffer because it's still not easy to rebel in Pakistan. I'm just gonna be honest. We don't have the capacity and privilege. So yeah, people over there, students, kids, we have been through a lot. So let's give ourselves the space because we did not have the opportunity and the voice to make use of our opinions. So it took time, but now it has changed. And I would again say मैं और मेरे एज के जो cousins हैं हम लोग, अब हम नहीं होने देते ये सब। लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। प्लीज़ उनको मत बताएँ उन्हें क्या करना है। That's a very debatable topic because what I see being as a millennials, हमारे पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर इज ओनली फील्ड दैट कैन ग्रो। ठीक है, और वो गलत नहीं है। व्हाट आई सी इज हर बात की दो साइड्स होती हैं और आपको दोनों साइड्स देखना बहुत ज़रूरी है। सो यस, मिलेनियल्स आर वन ऑफ द पीपल, मुझे ऐसा लगता है वन ऑफ द जनरेशन जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें इसलिए करी क्योंकि हमारे पास प्रेशर था। ठीक है, जेनज़ीज़ ऑन द अदर हैंड, या जेनज़ीज़ का फ़ायदा ये है कि उनके पास मिलेनियल बहन-भाई हैं। ठीक है, तो उन बहन-भाइयों को पता है कि ठीक है यार, मैंने सर्वाइव कर लिया। ठीक है, मेबी यू कैन एक्सप्लोर दैट थिंग। तो उनके पास एक बफर पीरियड है, एक तो, एक पॉइंट तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, जब मिलेनियल्स माँ-बाप बनेंगे, तो उनको पता होगा कि इन्वेस्ट आपने करंट चीज़ में नहीं करना होता, इन्वेस्ट आपने तब करना होता है जो अगले 4 साल बाद ग्रो करने वाली है। ठीक है? सो व्हाट आई सी कि अगर अभी कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है, तो अगर वो एआई पढ़ रहा है, तो वो एआई में वो चीज़ को स्पेसिफिकली पढ़े जो अगले 4 साल बाद और होगी। आई एम प्रीटी मच श्योर देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन दैट कैटेगरी एज़ वेल। ठीक है? तो वो एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ जो आपने अभी बात करी कि लिंक्डइन, अ, असल में लिंक्डइन पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि लिंक्डइन इज़ ओनली फॉर एचआर सेलिब्रिटीज़। ठीक है? लिंक्डइन पे पाकिस्तान में एचआर सेलिब्रिटी है। ठीक है? आप लड़की हो, आप अपनी पिक्चर डालो। अच्छा, ये मैं खुला बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इस पे लोग बोलेंगे या नहीं बोलते, जो भी है। हर बंदे की अपनी-अपनी है, लेकिन हाँ, अगर आप लड़की हो, आप लिंक्डइन पर हो, आपके पास लेवरेज है। आप कुछ भी डाल दो, आपके पास पोस्ट पे रीच तो आएगी। ठीक है? वो अलग बात है कि फिर उसमें बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, क्या कंटेंट डाल लो, क्या नहीं डाल रहे, चैट जीपीटी से लिख रहे हो, नहीं लिख रहे। आई सी अ लॉट ऑफ प्रोफाइल जो सिर्फ़ ऐसी अपनी इंस्टाग्राम की तरह पिक्चर डाल रही होती हैं, और अगर कोई लड़का अपनी पिक्चर डालता है, तो उसपे शायद 10 लाइक्स आते हैं, लड़की डालती है तो हज़ार 100 आ रहे होते हैं। तो जहाँ पर बात है प्रीमियम वाली, आई आई डोंट थिंक सो प्रीमियम होने से ही रीच आती है, रीच इज़ फॉर द कंटेंट, बट वो फिर भी टाइम लेगा। जैसे आपने बात करी कि यार आप बहुत पहले से लिंक्डइन पर हो, तो वो ऐसा नहीं है कि आपने लिंक्डइन जब बनाई अगले दिन यू बिकम लाइक योर पोस्ट इज़ गेटिंग एंगेजमेंट। आप कनेक्शन बिल्डिंग करते हो, आपको बहुत टाइम लगता है। लिंक्डइन पे लोगों को ऐसा लगने लगा है कि लिंक्डइन इज़ लाइक इंस्टाग्राम। उसमें सिर्फ़ अपनी पिक्चर डालो। मैं देखता हूँ लिंक्डइन पे अगर, तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में हर एम्प्लॉयी बहुत खुश है। उसको बड़ा मज़ा आ रहा है। वो मैंगो डे और एक्सवाईज़ी डेज़ बना रहे हैं, ठीक है? और मैं जब पर्सनली किसी से बात कर रहा होता हूँ, तो नहीं यार, हमारी जॉब में ये मसला है। भाई अगर मसले हैं, तो मसले बाहर निकालो, ठीक है? वन साइड यू आर सेइंग माय कंपनी इज़ वेरी गुड, अनदर साइड यू आर सेइंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखा, लोगों को अपनी प्रोफ़ाइल पे पर्सनल ब्रांडिंग की कोई वो नहीं होती। लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है यार, मैं इस जगह काम कर रहा हूँ, मेरी हर चीज़ वैसी दिखनी चाहिए। मैं जो चीज़ें शेयर करूँगा, वो भी उस कंपनी की होनी चाहिए, मेरा कवर उस कंपनी का होना चाहिए, मेरी प्रोफ़ाइल पिक्चर उस कंपनी की होनी चाहिए। मेरा जीना-मरना लिंक्डइन पे होना चाहिए, ठीक है? पहले मैं ये देखता था कि लोग सेल्फ ब्रांडिंग करते थे कि भाई ठीक है, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया कि लोग अब चलो ये चीज़ देख रहे हैं, लेकिन मैं दूसरी साइड पे ये कहता हूँ कि अपनी कंपनी से मोहब्बत करो, लेकिन उस हद तक ही करो जिस हद तक वो आपको पैसे दे रही है। क्योंकि जिस दिन आपको निकालेगी ना, तो फिर वही लोग होते हैं जो पाकिस्तान में बड़े-बड़े नोट्स लिख रहे होते हैं कि इन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए और ये और वाइस वर्सा, ठीक है? एंड देयर आर लाइक ओनली 2 टाइप ऑफ सिनेरियोज़ इन पाकिस्तान।
क्योंकि या तो एचआर है जो उसको हायरिंग करनी है, उसको अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल रहा, और जो कैंडिडेट है उसने अपनी प्रोफाइल पे मेहनत नहीं करी, तो उसको हायरिंग एचआर से रिलेट नहीं कर पा रहा। बट येस, यू आर राइट कि जितना पहले आप चीज़ों को बनाते हैं उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। जैसे आपने अपने बहन भाइयों को ये हेल्प आउट करा कि भाई लिंक्डइन बनाओ, लिंक्डइन इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि आपने उनको हेल्प आउट करा। इसी तरीके से अगर लोग हर किसी को, अगर आप कहीं पढ़ा रहे हो या मैं कहीं कोई सेशन ले रहा हूँ या किसी जगह पे ले रहा हूँ, और अगर मैं लोगों को कोई हेल्प आउट करूंगा, तो अगर सही है 10 में से 2 लोग भी बनाते हैं, तो एटलीस्ट 2 लोग तो ग्रो कर रहे हैं। तो ये तो कॉन्वर्जेशन का सारा पार्ट हो गया पाकिस्तान से रिलेटेड। लेट्स गो इंटरनेशनली। यू आर मूविंग टू स्वीडन एंड यू आर लिविंग इन स्वीडन, ठीक है? तो मुझे ये बताइएगा कि हाउ दैट हैपेंस, व्हाई दैट हैपेंस, हाउ इज लाइफ ओवर देयर, पाकिस्तान से कितना अलग है? या ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक चीज़ जो आपने लास्ट सब्जेक्ट में की, अगर मैं थोड़ा-सा ऐड कर सकूँ उस लिहाज़ के लिए, लिंक्डइन से ही रिलेटेड, चूँकि पाकिस्तान में अगेन पर्सपेक्टिव बड़ा डिफरेंट है। एचआर इज़ सॉर्ट ऑफ गेटिंग देमसेल्फ ब्रांड बिकॉज़ उनकी कंपनी की एक सच है रोल रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एडिशनल है कि आपको हमें मार्केट करना है अपनी लिंक्डइन पे। तो वो एक बहुत ही डिफरेंट जो सिनेरियो में चल रही है वहाँ पे कंपनी, बट ओके, आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट हियर नाउ। यस, सो आई रिलोकेटेड लास्ट ईयर व्हिच वाज़ नॉट it was not a very sudden decision, but yeah, Sweden was not planned. I was planning to move for studies to Europe basically. So yeah, but Sweden was not the only option. There were lots of other options, including Italy, Germany. But yeah, I think it was written to be Sweden. But yeah, I haven't traveled much internationally, to be very honest. This was my first visit to any country, and except for the transit flight that took me to Istanbul. Lekin Sweden, yeah, it's Scandinavian country. It's one of the happiest countries in the world. And coming from Karachi, I don't know if you're from Karachi or not. Are you from Karachi? And I'm Okay, proud. so from Karachi to a city where there is, इनकी इस पूरे मुल्क की आबादी 1 करोड़ है। तो मैं तो 3 करोड़ के शहर से आई हूँ। सो इट वाज़ 3 करोड़ की नहीं होगा वो, तो अभी तक मेरे यहाँ से 4 करोड़ पहुँच चुका होगा तेरे हिसाब से। पूरे मुल्क की आबादी है जो आपको बता रहे हैं 1 करोड़, और हम लोग जिस शहर में रह रहे हैं वो इट इज़ लाइक नॉट वेरी क्राउडेड, इट्स काइंड ऑफ it's the 3rd biggest city in Sweden, but it's still not that crowded. And I landed in Copenhagen and we lived there for a month and then okay, so not going to a lot of details about that, but yeah, overall comparing the life, it's very different. Um, I was not the kind of person I would like to build a foundation who wanted to relocate. I'm not going to be honest. I was a very nationalist, a very patriot, and I Until or still am. until or unless you move, मुझे ऐसा लगता है No, तू पर I will not. नहीं, इट्स I नॉट will. I इट्स will. ठीक है, एग्री Let एग्री। me speak. Let me speak, please. No, I was a nationalist and patriot, and I would say I still am until I realized and I understood the fact that even if I have to do something, I need to get that exposure and I need to build myself before I help people back in my country. So that was really important, which I was unaware about, and yet I was really resistant to as well. I was not. I'm a very family-oriented person. I had a lot of responsibilities. I was not really looking forward to relocating, but yes, कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने लिखी हुई होती हैं आपके नसीब में, पर things align accordingly, and it happened, and I'm grateful for it to explore it. Very very different country, very different. I mean, it's a very slow life. It's extremely slow life. Again, coming from the hustle and bustle of Karachi, तो 2-3 महीने तो ये realize करने में लगे that that's how they live here. There are no people, they don't rush, they don't use car, they use cycle. So ऐसी तो लाइफ है यहाँ पे यूरोप में। दुबई में भी आपकी फास्ट लाइफ होगी तो शायद ये चीज़ तो दुबई में कभी नहीं होगी, आई एम श्योर। बट यहाँ पे तो बिल्कुल ही ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका अलग है इन लोग का, डिफरेंट माइंडसेट है। Very introverted people, culture is, they have like a slow, soft life, and brilliant, brilliant nation as a whole. How they are using their system, extremely empathetic and human, and yeah, so it's going well for now. Overall system को compare करूँ तो again, I think ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो comparison बनता नहीं है। Scandinavian countries का entire system, it's starting from their education to their health to the social welfare system they have here. I mean, I wish we have it in Islamic countries. So they are just we are Yeah, this.
मतलब we have in Islamic countries, we have Yeah, Saudi, just next country in another. we have Saudi, we have UAE. Yeah, but the main pointer of discussing is this: कि, like when you move to another country, you understand that you really worth something. ठीक है? People are not rushing into things क्योंकि in Pakistan, what I really wanted to discuss is पाकिस्तान में ह्यूमन सेफ्टी नहीं है। जितना भी लोग कह लें, जिनको कहना है, लेकिन है नहीं, ठीक है? आई एम प्रीटी मच श्योर कि पाकिस्तान में 0.1% चांस तो है कि अगर आपकी बेटी बाहर आपके घर से बाहर है, तो आपको टेंशन तो होगी। फिर वो बेशक किसी के साथ भी हो, फिर वो अपने भाई के साथ ही क्यों ना हो, वो गाड़ी में क्यों ना हो, ठीक है? पाकिस्तान इज़ लाइक दैट, ठीक है? व्हेन यू मूव आउटसाइड पाकिस्तान तो आपको ये वाला जो पॉइंट है ना, ये होता ही नहीं है उसमें, कि आपको ये चीज़ देखनी भी है, ठीक है? 0 पॉइंट अगर 0.01% भी अगर वहाँ कुछ बुरा हो सकता है ना, तो वो इतना कम है कि लोग उसको अज़्यूम भी नहीं करते होंगे कि ऐसा होगा, ठीक है? एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़, कल्चर शॉक के साथ आपको एक फुल ना 360 शिफ्ट मिलता है। पाकिस्तान में आपके पास हर चीज़ का बैकअप होता है एंड आई एम प्रीटी मच श्योर राइट नाउ यू आर आल्सो स्टडीइंग ओवर देयर, राइट? ठीक है? Yes. तो जब आप पाकिस्तान में पढ़ रहे होते हैं ना, तो पाकिस्तान के डायनामिक्स थोड़े अलग होते हैं। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में आप कहते हो यार कर लेंगे, दोस्त हैं, हो जाएगा, असाइनमेंट है, बन जाएगा, डिग्री है, हो जाएगी। आउटसाइड पाकिस्तान इज़ टोटली डिफरेंट, ठीक है? वहाँ पे चीज़ें मोटिवेशन से नहीं डिसिप्लिन से चलती। वहाँ पे आपको ये भी अंदाज़ा लगाना है कि मैंने इतने टाइम पे उठना है, इतना देर मैंने ट्रैवल करना है, फिर वहाँ से जाऊँगी, पढ़ना है। यहाँ पे पाकिस्तान की लाइफ़ खत्म हो जाती है क्योंकि वापस आके आपको खाना घर पे मिलता है, ठीक है? आपके अम्मा-अब्बा होते हैं, आपको ख़्याल रखने के लिए लोग होते हैं एंड जो आपने रिएक्शन दिया आई एम प्रीटी मच श्योर जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो कन्वर्सेशन आप बिल्कुल समझ रही हैं। वहाँ पे जब आप वापस आती हैं तो आपको पता चलता है ओके, ये जो सुबह के बर्तन हैं ये मुझे धोने हैं, मुझे अपने कपड़े धोने हैं, मुझे पढ़ना है और मुझे कल के लिए रेडी होना है। व्हाट डू यू थिंक व्हाट वी यूजुअली नीड व्हेन वी मूविंग आउटसाइड पाकिस्तान? क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ इतना बताया जाता है, फिर वो आपके क्या कहते हैं वो एजेंसीज़ जो आपको भेजती हैं बाहर क्या कहते हैं उन्हें? Consultant? Student कंसल्टेंट, consultant. यस या स्टूडेंट कंसल्टेंट। तो वो आपको जो आपके पास जो नक्शा खींचते हैं ना, वो आपको खींचते हैं आप एक मर्तबा लैंड हो जाओ, ठीक है? मुझे लगता है कि जितने मेरे दोस्त बाहर रहते हैं यूके, यूएस, कनाडा, यूएई के अंदर रहते हैं, सिंगापुर में रहते हैं, ठीक है? उनसे मैंने ये चीज़ देखी, उन्होंने बोला भाई लैंड होना ना सबसे आसान, मसला होता है लैंड होने के बाद। पाकिस्तान में बताया जाता है कि एक मतलब आप लैंड हो गए ना, वो हो आपकी यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है और टॉप 100 में यूनिवर्सिटी और एक्स है और वाई और जेड है। बट आप जब लैंड होते हैं तो आपको क्या लगता है कि यार कौन से की फैक्टर हैं? क्योंकि अभी आप अच्छे खासे टाइम से वहाँ पर हो। इट्स बीन अ ईयर नाउ, राइट? No, 8, 9 months. ऑलमोस्ट लाइक ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 1 ईयर नाउ। कुछ तो चीज़ें हैं उनका ख़्याल रखना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी कौन-सी है, कहाँ पे जाना है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कौन से की पॉइंटर्स आपने अपने 6-8 महीने में देखे हैं कि यार जो लोग बाहर से पाकिस्तान से बाहर आ रहे हैं किसी भी कंट्री में, उनको ये चेकलिस्ट को क्लियर करना चाहिए ताकि उनको आसानी हो। सेफ एंड ईज़ी मतलब कोई कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन यार ये चेक पॉइंटर्स हैं, ये तो क्लियर करने ही करने हैं। क्योंकि पाकिस्तान से मुझे लगता है स्टूडेंट जब बाहर जाते हैं, तो वो ये ज़्यादा ध्यान देते हैं कि यार हम कपड़े कौन से खरीदें रेदर दैन कि वो ये ध्यान दें कि भाई ट्रांसपोर्टेशन में व्हीकल कौन सा लेना है, उसका बस टिकट कहाँ से आएगा, वाइस वर्सा। अच्छा, सबसे पहली तो चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि आई डिड नॉट यूज़ एनी कंसल्टेंसी फॉर रिलोकेटिंग एंड दैट वाज़ द बेस्ट डिसीजन व्हिच आई गिव क्रेडिट टू माय सही। mama as well. He told अच्छा। okay, yeah, because if you are going as a student or if you know the things, you don't need any consultancy. To be honest, आप पूरा process खुद कर सकते हैं. So उस चीज़ ने मुझे बहुत help out किया because we did entire research from scratch where we want to relocate, why I want to relocate, what are the universities, what is the budget. I have sheets maintained. I did every single background check. I did a lot of research, which gave me a lot of background knowledge. When you're relying on somebody else, of course, then you don't know what you have been through, and that's a cost, which is again that was too much. So when I did this thing by my own, so I knew कि okay, these are the things that are going to come along. So वो स्टेप मैं सबको सजेस्ट करती हूँ भी मेरे कुछ जूनियर्स भी रिलोकेट वगैरह करने का कुछ डू इट योरसेल्फ डू द रिसर्च टेक आउट द यूनिवर्सिटीज अगेन जब जितना आप इन्वेस्ट होते हैं ना उतना आपको पता होता है कि यू वांट टू डू समथिंग यू आर नॉट जस्ट गोइंग अलोंग विद द मोब एंड जस्ट डूइंग बिकॉज एवरीबडी एल्स इज रिलोकेटिंग सो इट्स टाइम फॉर मी टू लीव पाकिस्तान नो that's not how it should be. So when you do this whole things by scratch, then you know what you are going for and you are pretty clear. So it's and from me it's highly suggested.
Go search the internet. If you want to relocate to Europe, it's very simple. You can do it on your own, except for few things, few countries which are difficult. Second thing, yes, I won't say कि एजुकेशन वाला पार्ट मुझे थोड़ा-सा बॉदर किया बिकॉज़ मैं तो बहुत नर्ड थी। सच्ची बात ये है कि कभी मैं तो उन लोगों में से थी जो सबको पढ़ाती थी। तो मुझे कभी वो सिस्टम तो मुझे बहुत पसंद आया। इनफैक्ट आई थिंक आई रियली सूट विद द डिसिप्लिन सिस्टम दैट इज़ हियर, बट या the kind of responsibilities you have to take, taking care of an entire home is very different. I have been always living in a joint family. I'm an only child, so yeah, I had people doing things for me, so it was very difficult for me to manage all of these things. And the mental pressure of relocation, you have to pay your rent and you have to study and you have to fill the groceries, and there is a lot of work that has to go on. Plus, if you are living away from your family, there is a lot of emotional burden. दूर रहते हैं आप, इतने करीब नहीं है कि आप जाके 1-2 दफ़ा विज़िट कर लें। सो दैट्स अ बिग, बिग, बिग प्राइस यू हैव टू पे, व्हिच इज़ आई थिंक द बिगेस्ट प्राइस यू आर पेइंग हियर। मैं काम को भी नहीं कहूँगी, दैट यू आर अवे फ्रॉम योर लव्ड वन्स। आप अपने घरवालों से दूर हैं, ये सबसे बड़ी प्राइस होती है जो आप पे कर रहे होते हैं अ, to live in another country. When it comes to discipline, self-discipline, doing the things, yes, it's really difficult, and it was very difficult for a person like me too, but जब मैं रिलोकेट हो रही थी उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने ये की थी दैट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय सेल्फ डिसिप्लिन। कि भाई उठना है एक टाइम पे, देयर शुड बी अ वर्कआउट रूटीन, देयर शुड बी समथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर योर मेंटल हेल्थ टू फील गुड। You are eating well, you are giving yourself time, and you are managing things one by one, not like taking them all together. तो मैं बहुत स्लो एंड स्टेडी होके मैंने जबकि मेरे पास बहुत कम टाइम का, आई रिमेंबर टेक द फ्लाइट, बट फॉर फ्यू मंथ्स जब हम लोग इन द प्रोसेस थे, आई स्टार्टेड डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स बाय माय ओन to train my mind that if I'm relocating, I should be in a position to you know it should not be coming as a whole on me. I should not take the toll of it because it is too freaking much. So मैंने आई रिमेंबर शुरू के कुछ महीने में जब काम कर रही थी, मैंने ज़्यादा काम किया ताकि मैं मेरे पास इतने फाइनेंसेस हो कि मैं आखिरी के कुछ दिन काम ना करूं, क्योंकि जब मैं आई थी ऑब्वियसली 1 महीने में आई कुड नॉट वर्क। इट वाज यू आर नॉट रेडी फॉर इट, और आपके रिलोकेट करते हैं, स्पेशली लुकिंग लाइक मी, आई वर्क एज अ फ्रीलांसर एंड अ कंसल्टेंट। तो मैं अपने बंद कर दिया था मैंने अपना कैलेंडर, कि मुझे पता नहीं था यहाँ पे मेरा टाइम ज़ोन चेंज हो गया। मुझे अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करना था, नए क्लाइंट्स को रीच आउट करना था। आपकी आइडेंटिटी एंटायरली रीबिल्ड होती है। सो आई एम कमिंग एज़ Mahanadeen फ्रॉम पाकिस्तान एंड स्वीडन नोबडी नोज़ मी एज़ Mahanadi. So this is a big cultural shock that you have to face. कि nobody knows you here just like a common person. You will be doing things like common people. And the fact that you are here, everybody is so equal. They treat you so equally that you will not feel any sort of privileges that you did back in your country. That's very important, especially in here, in this part of the world. So you have to take the bus ride, you have to pick your groceries, you have to walk all the way, and yeah, so everything seems like a pressure in the beginning because you are not used to it. There were people doing things for us. I told I had a client, she was French. I told her, हमारे घर में ऐसे ऐसे होता था. We had a driver, we had people are like, you guys are freaking rich. I know. That's how रियलिटी culture is. चेक रियलिटी चेक होता है लोगों को, अगर आप बताओ कि यार But yeah, that's how the culture is. They're so rich because the richest people over here have such small homes. They have small apartments. They have less stuff. They don't have cars. They ride bikes. द लाइफस्टाइल इज़ बेसिकली टोटली डिफरेंट। अगर मैं पाकिस्तान की अमीरी की बात करूँ और बाहर के मुल्कों की अमीरी की बात करूँ, ठीक है? इन उसके व्यू साथ जो मिडिल क्लास है वो भी शायद ज़्यादा रॉयल इन तरीके से रहता इन यूएई इट्स अ डिफरेंट गेम। वो तो ये तो अलग ही जा रहे हैं ना, मतलब यहाँ तो अमीरी ही अलग लेवल पे, यहाँ दुनिया की अमीरी खत्म होती है, यहाँ अमीरी शुरू होती है। बट द मेन रीजन ऑफ आस्किंग ऑल दैट इज, मैंने देखा, मैंने अपने ऐसे दोस्तों को देखा जिन्होंने उठ के पानी नहीं पिया। आज वो यूके, कनाडा, यूएस में बैठे हुए हैं और वो हर काम खुद करते हैं, ठीक है? लड़कियों के पास तो फिर भी एक प्लस पॉइंट होता है क्योंकि आप लोग थोड़े से सुधरे हुए होते हो, ठीक है? आप लोग थोड़े से सुधरे हुए होते हो कि आप लोग को पता होता है कि ठीक है यार, ये चीज़ को करना है। बट इट्स गुड टू डिस्कस ऑल थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो काम की आदत दिलवानी चाहिए लड़कों को, वो ये कि कचरा खुद फेंकना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कचरा फेंकना पड़ता है और वो बहुत बुरा लगता है आपको कि आप पूरा गार्बेज बैग उठाते हो, फिर आपको आपको बिल्कुल कम या तो अपनी फ्लैट के बिल्कुल कोने पे जाना होता है, अपार्टमेंट के एंड पे जाके उसको फेंकना होता है खुद से, तो उसकी आदत डालें। बट इट्स गुड कि you highlighted all the thing. I'm pretty much sure people will gonna
love all the conversation. उसमें फिर स्टूडेंट का पार्ट तो आपने जैसे बताया कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंट है. So I think this conversation has very good pointers that people will like, and surely अगर उनको कोई भी चीज़ पूछनी होगी about anything, they can reach out to you on LinkedIn. I'm pretty much sure you will be available for them. But जस्ट फॉर द ऑडियंस, हाय हेलो का मैसेज मत मत करिएगा. अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो पूरा मैसेज टाइप करिएगा. आई एम प्रीटी मच श्योर यू विल गेट एन आंसर. But I think that's from my end. Vaha, thank you so much for taking out time. It's my pleasure to have you on the session and discuss about all the things that we discuss. Hopefully, people will understand and like the content. And if they need any help, they will reach out to you. Thank you so much for having me. It was a lovely conversation. If I can just add one more thing at the end, for everybody who's listening, so the journey started off in Pakistan, it's in Sweden, it will continue. But yeah, so there's no such thing as a shortcut. Don't assume that anybody gets it easy than anyone. And so try to look at people with the eyes of inspiration and see the things that they have gone through and learn from them. So nothing comes easy, and whether you are living in Pakistan or you are relocating, there are different things that you have to go through. But continue working on yourselves, and that's the most important thing. Whether it's about communication, whether it's about your personal or professional development, because both of these things go together if you want to go anywhere in life. So yeah, Good. thank you. Thank you so much.